آئیں اور کلام خدا کو ہم سب کے لیے شیئر کریں آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ مسیح خداوند کے پاک مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کچھ انتظامیہ سے میں کہوں گا کہ اب گیٹ کو بند کر کے چھوٹی کھڑکی کھول دیں اور یہ چھوٹے بچوں کو آنا جانا بند کریں۔ کلام کے بعد دعائیہ سیشن ہوگا اور اس میں ہم چاہیں گے کہ آنا جانا نہ ہو، اور جو چھوٹے بچے ادھر ادھر چل رہے ہوں گے انتظامیہ سے درخواست ہے کہ انہیں کنٹرول کریں، دیکھیں۔ کچھ وقت دعا میں گزارا جائے گا اور جس طرح بتایا گیا ہے اب خدا کے زندہ کلام کو ہم بڑی توجہ اور غور سے سنیں گے۔ خدا کے خادم پاسٹر ناصر عاشق ہمارے بیچ ہیں، وہ تلاوت کریں گے آج کے کلام خدا کی۔ میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں قضات کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 34 آیت سے لے کر ہم 40 آیت تک بڑے غور سے خدا کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ یہاں لکھا ہے، اور افتح مصفا اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی عمون سے تیرا انتقام لیا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے، تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا، جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی، اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھری، اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھی۔ خداوند کے پاک کلام پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ایک بار پھر اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے کلام خدا کے لیے۔ خدا کی خادمہ بہن رضیہ ناصر آئیں گی، کلام خدا کے لیے دعا کریں گے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ زندگی کے خالق اور مالک یسوع ناصری، ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے دھن باد کہتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ آسمان کے تلے کوئی اور نام بخشا نہیں گیا کہ جس کی ہم تعریف یا حمد یا ستائش کریں، بلکہ واحد یسوع نام ہے۔ ہم یسوع نام کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جتنا وقت پیارے خدا ہم پیارے خدا تیری حضوری میں گزار چکے، اور پیارے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جب ہم سب نے آج فادر ڈے منایا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں باپ دیا، تیرا شکر کرتے ہیں تو نے روحانی باپ دیے۔ میں تیری تعریف کرتی ہوں، وہ لمحہ وہ گھڑی آن پہنچی ہے جو ہمارا روحانی باپ ہے پیارے خداوند، جو تیری انجیل کی منادی
प्यारे खुदा, और तेरी मुंह की बातें हमें सिखाता है ताकि हम उस पर अमल करें और उस राह पर चलें जो खुदावंद तू चाहता है। तेरी तारीफ़ करती हूँ। जब तेरा खादिम तेरे इलाही कलाम को लेकर आया है तो आज शाम प्यारे खुदा तो अपने खादिम को बड़े बादल की तरह बरसाना, ताकि प्यारे खुदा एक एक ज़िंदगी से कलाम करना। मेरा ईमान है कि तू वही कलाम करने को है जिस कलाम की हम सबको ज़रूरत है। तेरी तारीफ़ करते हैं। अपने बेटे को, अपने खादिम को सर से लेके पाँव के तलवे तक जुमा लेना, ताकि प्यारे खुदावंद आज शाम जब तेरा तपा हुआ कलाम सुने तो हम इस कलाम के वसीला से बाइस से बरकत ठहरें। तेरी तारीफ़ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ कि हम पूरी तवज्जो करेंगे और खुदा के जिंदा कलाम में चंद बातें अपनी भलाई बेहतरी के लिए सीखेंगे। अगर तवज्जो देंगे तो बरकत पाएंगे। खुदा का कलाम हमारे राह की रोशनी है और कदमों का चराग है। खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत दी है। आज हमने जिस दिन पर गौर किया, ये एक आलमी दिन है और आलमी दिन का मुराद, आलमी दिन से मुराद ये है पूरी दुनिया में फादर डे को मनाया जाता है। ये जो डे या दिन मुकर्रर किए जाते हैं कुछ नामों के लिए, उनके बारे में अगर हम गौर करें तो वो क्या है। जिस तरह मदर डे, माँ के लिए एक दिन, जब किसी चीज की अहमियत खो दी जाती है, जब किसी चीज पर तवज्जो नहीं की जाती तो उसको याद दिलाने के लिए ये किया जाता है। माँ का दिन, इसका मतलब कि माँ पर तवज्जो कम हो गई और ये तवज्जो दिलाने के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया पूरी दुनिया में ताकि माँ की अहमियत को जाना जाए। इस तरह मुख्तलिफ और दिन हैं। बच्चों का आलमी दिन, ये क्यों रखा गया? दुनिया में बच्चों की मौत जब बहुत हुई बीमारियों के सबब, वजूहात के सबब, तो फिर दानिशमंद लोगों ने बैठकर सोचा एक दिन बच्चों के नाम का मुकर्रर किया जाए, उस पर सेमिनार किए जाएं, तालीम दी जाए ताकि लोग बच्चों की कदर जाने, बच्चों के बारे में, फिर हॉस्पिटलों दवाइयों के बारे, तो उसके बारे में सेमिनार किए जाते हैं। आज भी एक सेमिनार है, आज भी एक दुआया सेशन है। तो आज जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं वो बाप के लिए एक दिन, फादर डे। फादर डे से मुराद क्या है? फादर डे क्यों मुकर्रर किया गया? मैं कुछ दिन पहले किसी एक बुजुर्ग शख्स की बात सुन रहा था। मैंने जब उसको देखा, उसने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए थे और वो रो रहा था और वो ये कह रहा था मेरा बेटा सिविल जज है। मैंने अपनी जमीन बेची, अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटे को पढ़ाया और यहाँ तक उसको तालीम दिलाई कि आज वो कोर्ट में सिविल जज है और एक बड़े ओहदे पर फाइज है। उसने कहा मेरी बीवी, एक दिन हम गांव छोड़कर अपने बेटे के पास शहर गए और जैसे उसके बंगले में दाखिल हुए, उसकी माँ को, वो आदमी कह रहा है मेरी बीवी को, यानी उसने, बेटे ने अपनी माँ को धक्के देकर निकाल दिया। नौकरों ने पूछा कि ये कौन है? कहा गांव में हमारी मुलाजिम थी, यहाँ पीछे भी आ गई है, इसलिए मैंने इसे निकाला है। उसका बाप रोने लगा और उसने नौकर कहकर उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। और वो बाप रो रहा था और अपनी बीवी के बारे में कह रहा था और फिर अपने बेटे के बारे में कह रहा था, हमने इतनी मेहनत करके इसे पढ़ाया लिखाया, अपनी फिक्र नहीं की, अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ इसके लिए किया और आज इसने हमें अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया। ऐसी बातें हैं जिनके लिए जरूरत पड़ती है कि माँ के लिए दिन मुकर्रर किया जाए, बाप की अहमियत को जाना जाए, किसी बात पर तवज्जो की जाए। आज ये बातें सब जानते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं
जिन्होंने शायद बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छे मकाम तक पहुंचाया है, और अगर उनके साथ ऐसा सलूक हो तो वो क्या सोचेंगे। इसी दिन के लिए आज का दिन रखा गया है। बाप की अहमियत क्या है, बाप का मकाम क्या है, बाप को कौन सी इज्जत वाजिब है और बाप को कौन सा मकाम हमें देना चाहिए। एक तलावत जनाब पास्टर साहब ने हमारे लिए पढ़ी है, और वो काजियों की किताब, कज़ा की किताब। जब बनी इसराइल में बादशाह नहीं होते थे, पहला काजी यशवा हुआ और यूं काजी आते गए। उस जमाने में बनी इसराइल में कोई बादशाह ना था। यशवा मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को लेकर आया और वो मुल्क कनान में दाखिल करने वाला हुआ, और यूं पुश्त दर पुश्त काम चलता रहा। काजी आते रहे, मगर उससे पहले थोड़ा पीछे जाए। एक बाप है और उसका नाम है इब्राहिम। क्या नाम है जी? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा और जो मैं कहूं जवाब आगे से दीजिएगा। इब्राहिम को खुदा ने वादा किया इब्राहिम से, और खुदा ने कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा, और खुदा ने यह भी वादा किया कि तेरे वसीले दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। खुदा ने उसे औलाद दी। अंजीलों को पढ़ने वाले, सुनने वाले हैं आप। नए अहदनामा में जब हम पढ़ते हैं तो मसीह यस्सु ने कुछ बातें की, और यस्सु ने कहा जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को इज्जत देता है वो मेरे लायक नहीं। जो मुझसे ज्यादा अपनी औलाद से प्यार करता है माँ बाप, वो भी मेरे लायक नहीं। यानी यहां हमें क्या सिखाया जा रहा है? यीशु मसीह ने हमें जो खास बात सिखाई है वो ये है, सारी इज्जत के लायक हमारा खुदा है, जो बेहद इज्जत के लायक है, और जिसने हमें ये इज्जत बख्शी। यीशु मसीह के आने से पहले किसी कौम ने ये जुर्रत नहीं की कि वो खुदा को बाप कहे। जब यीशु मसीह मेरा और आपका खुदावंद दुनिया में आया तो यीशु मसीह ने जब हमें दुआ सिखाई तो उसने कहा, कहो ऐ हमारे खुदा से। मसीह यीशु ने हमारा रिश्ता बाप और औलाद का बना दिया, और ये अजीम रिश्ता है। खुदा हमारा बाप है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। ये वो अजीम रिश्ता है। खुदा ने बाप इब्राहिम से कहा, मैं तुझे औलाद दूंगा और दुनिया की सारी कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी, और खुदा ने उसे औलाद दी, इजहाक दिया। और जब इजहाक कोई 10 से 11 बरस का हुआ, खुदा ने आवाज देकर इब्राहिम से कहा, इब्राहिम ने कहा, बोल ऐ खुदा तेरा बंदा सुनता है। और इब्राहिम से खुदा ने कहा, अपने बेटे इजहाक को ले अमूरिया के पहाड़ पर जा और वहां जाकर इसे सोख्तनी कुर्बानी के लिए कुर्बान कर दे, अपना बेटा मेरे लिए कुर्बान कर दे। तो इब्राहिम ने क्या कहा? रोया, दीवारों को टकरे मारी, चलाया, खुदा तूने क्यों दिया था, अगर वापस लेना था। उसने ये सब कुछ नहीं किया। वो रोया नहीं, वो चलाया नहीं, उसने फौरन आवाज देकर खुदा से कहा, ऐ खुदा मैं तेरा बंदा सुनता हूं, मैं हाजिर हूं, करने को तैयार हूं। हालेलुया। इब्राहिम ने अपने बेटे को लिया, 3 दिन का पैदल सफर करके अमूरिया पहाड़ पर पहुंचा और जाकर अपने बच्चे से कहा, बेटा आ हम ऊपर कुर्बानी करने के लिए जाएं। नौकरों को वहीं खड़ा किया, सामान वहीं छोड़ा, लकड़ियां ली, बेटे को लिया और छुरी अपनी बगल में छुपा कर रखी थी। जब पहाड़ के ऊपर पहुंचे, बेटे ने कहा, बाप आपने कहा हम कुर्बानी के लिए आए हैं, बर्रा कहाँ है? तो इब्राहिम ने क्या कहा? खुदा मुहैया करेगा। हालेलुया। जिसके मैनी है यहोवा यरी, यहोवा यरी के मैनी है मुहैया करने वाला।
खुदा मुहैया करने वाला, और ये नाम खुदा को बाप इब्राहिम ने दिया। और बाप इब्राहिम ने लकड़ियां रखी और अपने बेटे को बांधा और लकड़ियों के ऊपर रख दिया, बगल से छुरी निकाली और चला दी। यूं ही छुरी बच्चे की गर्दन के करीब पहुंची, आवाज आई, इब्राहिम अपना हाथ रोक दे, क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हुई। हालेलुया। मुड़ के देख, पीछे मेंढा है, बकरा, वो मेंढा है, दुम्बा, उसे ले और उसे ज़बह कर, तेरी कुर्बानी कबूल हुई। ये एक बाप है, उसने बिल्कुल तरस नहीं खाया। यीशु ने कहा, जो अपनी औलाद को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। बाप इब्राहिम, इसके बारे में आप इब्रानियों का खत 11वां बाब पढ़ के देखें तो लिखा है, बाप इब्राहिम खुदा को पसंद आया और ये उसके लिए ईमानदारी गिना गया, रास्तबाजी गिना गया, इसलिए वो आज ईमानदारों का बाप कहलाता है। इसमें हमारे लिए, इसमें मेरे लिए, इसमें आपके लिए सबक क्या है? हमारे लिए सबक ये है, हम माँ, हम बाप औलाद को खुदा से ज्यादा प्यार ना करे, खुदा से ज्यादा इज्जत ना दे। जब आप मुकाशवा की किताब 2 बाब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 4 आयत में, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है, तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। तवज्जो करें, ये कलीसिया, इफसस की कलीसिया एक मजबूत कलीसिया, ईमानदार कलीसिया, यीशु की खातर दुख उठाने वाली कलीसिया, यीशु के लिए मुसीबतें उठाने वाली कलीसिया। मगर खुदा ने कहा, मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अभी खुदा के खादम बता रहे थे, और हम जब पैरों में, रात के पैरों में उठकर खुदा के हुजूर दुआ करते और अपना वक्त खुदा को देते हैं, ये है पहली मोहब्बत। और अगर हमारे पास दुआ के लिए टाइम नहीं, औलाद के लिए टाइम है, औलाद के लिए सब कुछ है, मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, खुदा के लिए कोई टाइम नहीं, इसका मतलब हम खुदा से ज्यादा अपनी औलाद से प्यार करते। खुदा का वक्त कहाँ है? तो ये बात सिखाई गई है। हमने जो एक वाकया पढ़ा और ये हुआ, ये जिंदा वाकया है, ये बनी इसराइल में हुआ। ये इफ्ता जो था, ये एक बहुत बड़े कबीले में एक सूरमा था, एक बहादुर था, एक जंगजू था, एक दलेर आदमी था और न डर था। इसके भाइयों ने इसे घर से निकाल दिया, और मुख्तसर बात यह है, दूसरे इलाका में ये चला गया। बनी इसराइल के साथ दूसरी कौमों ने जंग छेड़ी, और फिर इसके भाइयों को, कबीले के बुजुर्गों को याद आया, अगर हमारे दरमियान इफ्ता होता तो हम फातेह होते, यहाँ कोई कमान करने वाला नहीं। एक बात याद रखिएगा, हमारे कौल भी हैं और हम कहते भी हैं, जो लीडर होता है, जो लीड करने वाला होता है, जो सबको गाइड करता है, उसका बड़ा मकाम होता है। अगर लीडर बहादुर है तो सारी कौम बहादुर है, अगर लीडर बुज़दिल है तो वो सबको बुज़दिल कर देता है। क्योंकि बनी इसराइल में उस वक्त सरदारों ने देखा, ऐसा कोई दलेर नहीं जो कौम को खड़ा करे, जो कौम को मजबूत करे, लड़ाई के लिए तैयार करे। हाँ, एक शख्स है, उसका नाम इफ्ता है, और इस वक्त वो हमारे दरमियान नहीं। इसराइल के बुजुर्ग इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा इफ्ता को वापस लाया जाए, वो हमारे लिए जंग लड़े, हमारी क़यादत करे, क्योंकि वो दलेर है और बहादुर है। इफ्ता को बुलाया गया, वो वापस आया। बुजुर्गों ने कहा, दुश्मनों ने जंग छेड़ी है, तू हमारे लिए क़यादत कर, हमारे आगे चल, इस जंग को लड़ और हम तेरे साथ हैं। उन्होंने बहुत से वादे किए। इफ्ता ने कहा, मैं जंग लड़ूंगा और जरूर लड़ूंगा। उसने कुछ वादे लिए और वो किए। फिर इफ्ता खुद दुआ में झुक गया। सुने, तवज्जो करें,
कोई काम करने से पहले, हर काम करने से पहले खुदा के हुजूर झुकना चाहिए, खुदा से मांगना चाहिए, खुदा से बात करनी चाहिए, फिर हमें बड़े काम करने चाहिए। हमने यहाँ तक देखा है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, घर में कोई बड़ा प्रोग्राम है, दुआ की किसी को फिक्र नहीं, खुदा के कलाम की किसी को फिक्र नहीं कि खुदा के खादमों को बुलाया जाए और बैठकर दुआ की जाए। खुदा कहते हैं जो काम करो ये जान कर करो कि खुदा के लिए करते हो, और जब हम खुदा के लिए करेंगे तो फिर खुदा को याद भी रखेंगे। आज हमारे कामों में नाकामी और हमारी कलीसियाओं में मुश्किलें क्यों हैं? हम पहला दर्जा खुदा को नहीं देते। पहला दर्जा खुदा को देख कर देखें, फिर देखें खुदा कैसे बड़े काम करता। इफ्ता ने क्या किया? इफ्ता झुका, उसने रात खुदा के हुजूर गुजारी, उसने दुआ मांगी, ऐ खुदा मुझे ये जंग फतह याब कर, इस जंग में अपने बंदे के साथ हो और मेरी मदद कर, उसी तरह जिस तरह तू दाऊद के साथ था। हालेलुया। दाऊद के बारे में आप जानते हैं, मैं एक उसकी बात बताऊंगा। एक मकाम पर खुदा ने दाऊद से कलाम किया और खुदा ने दाऊद से कहा, दाऊद उठ और ये जंग तैयारी कर, ये जंग तुझे लड़नी है, इन इलाकों में जा और वहां सबको खत्म कर दे। वजह क्या होती थी? बाद लोग समझते हैं क्या खुदा जालिम था? हरगिज़ नहीं। जब बुत परस्ती, हरामकारी, जादूगरी अरूज पे होती थी, फिर खुदा उन इलाकों को बर्बाद कर देता। खुदा ने दाऊद से कहा, उठ, इनकी बदकारी मुझ तक पहुंच गई, इनको खत्म कर दे। दाऊद ने कहा, ऐ खुदा मैं तेरा बंदा हाजिर हूं, पर मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अगर तू मेरे आगे आगे चले तो मुझे भेज, और अगर तू आगे नहीं चलेगा तो फिर मुझे ना भेज। खुदा ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। मगर दाऊद ने फिर जिद की और कहा, नहीं। दाऊद ये चाह रहा था मुझे कोई निशानी मिले कि तू मेरे आगे आगे है। तो फिर खुदा ने कहा, सुन, कल सुबह इस वक्त मैदान में जमा हो जाना, लड़ाई के लिए तैयार होना और इंतजार करना। आज एक प्रॉब्लम और है, हम इंतजार नहीं करते। दाऊद कहता है, मैं खुदा की चौखटों पर खुदा का इंतजार करता हूं। हम दुआ करते हैं, जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। हम पर्सनल दुआ करते हैं, घर में दुआ की, जल्दी से उठ गए, इंतजार नहीं करते। जब हम बोलते हैं हम चुप करेंगे, फिर देखना खुदा बोलेगा, और खुदा अपने लोगों से बोलता। जिनको तजर्बे हैं उनसे पूछें। क्यों जी आसिफ? खुदा अपने लोगों से कलाम करता है। आप दुआ करके देखें, थोड़ी देर रुक जाएं, बैठे रहें, सर झुकाए रखें, आंखें बंद रखें, फिर खुदा बोलेगा। हालेलुया। मेरा ईमान है खुदा बोलता है, और मेरे तजर्बे हैं और खुदा के लोग जानते हैं खुदा बोलता है। दाऊद खुदा के हुजूर झुका। खुदा ने कहा, कल सुबह इस वक्त यहां जमा हो जाना, और जब तू देखे इंतजार करना। तेरे सामने से एक लश्कर गुजरेगा, वो लश्कर तुझे नजर नहीं आएगा, मगर उसके पांव की टापों की आवाज तुझे सुनाई देगी। देख, गौर कर लेना, वो मैं ही हूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, खुदा मेरी जंग लड़ता है। हालेलुया। अगर आप जदाऊन के बारे में जानते हैं, जदाऊन एक आम आदमी, जट जिम्मेदार, और उसको दबूरा नबिया ने कहा, उठ, खुदा ने तुझे चुना है, दुश्मनों से जंग लड़। और वो उठा, और हजारों के तादाद से लोग उसके साथ थे, मगर खुदा ने कहा, इन्हें भेज दे। इनमें से क्या, जिसकी नई शादी हुई है घर चला जाए, वो चले गए। जो बुज़दिल है वो भी चला जाए, चले गए। इस तरह बहुत से चले गए। फिर जदाऊन ने कहा, खुदा इतने बचे हैं, काफी हैं। खुदा ने कहा, नहीं, अभी भी ये ज्यादा है। तो कहा, मैं क्या करूं? इनको तालाब पे ले जा, इनको बोल पानी पियो, और जो पानी पिए तरीके से, सलीके से, उनको घर भेज देना, और जो चपक चपक पानी पिए उनको अपने साथ रख लेना। हालेलुया। खुदा कुदरत वाला है, और खुदा बताना चाहता है कि जब तुम्हारी अकल काम नहीं करती, उस वक्त मेरी अकल शुरू होती है। हालेलुया। तो वो सिर्फ कितने लोग बचे? जदाऊन के साथ सिर्फ 300 लोग।
और आगे हजारों की फौज, उनसे लड़ाई करनी थी। खुदा ने कहा इतनी बड़ी फौज लेके नहीं, ये 300 लोगों से मैं उनको शिकस्त दूंगा। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, खुदा हमारी जंग लड़ता है। इफ्ता जलादी खुदा के हुजूर झुका और उसके मुंह से एक मन्नत निकल गई। कैसे निकल गई वो जानता है बेहतर। उसने कहा, ऐ खुदा, अगर मैं जंग जीत कर आऊं तो मेरे घर से सबसे पहले जो मुझे नजर आए मैं उसकी कुर्बानी कर दूंगा। हालेलुया। वो जंग के लिए गया, फतह याब हुआ, उसने जंग जीती। जब वापस आया तो लोग शहर से निकले, तब बजाते, तपले बजाते, ढोलक बजाते हुए इफ्ता के इस्तकबाल को निकले। और इफ्ता की बेटी हाथ में दफ लिए हुए अपने बाप के इस्तकबाल को निकली। उसको देखा, उसको याद आया, उसका बाप रोया, चला उठा, अपने कपड़े फाड़े और कहा, जो लोग मुझे दुख देते हैं मेरी बेटी उनमें तू सबसे बड़ी है। उसकी बेटी परेशान हो गई, बाप मैं तो तेरे इस्तकबाल के लिए आई हूँ, मेरा बाप जंग जीत कर आया है, मेरे बाप के साथ मेरा खुदा है, और तू कहता है मैंने तुझे दुख दिया। क्या मैंने तुझे दुख दिया? कहा मैंने मन्नत मानी है, मेरे घर में से जो कोई पहले मुझे मिलेगा मैं उसको यीशु खुदा के लिए कुर्बान कर दूं। कहा मैं हाजिर हूँ। ईमानदारों की औलाद ईमानदार होती है, खुदा तरसों की औलाद खुदा तरस होती है। आज के ज़माने में उन दुनियादारों की औलाद होती तो वो कहती तू जान और तेरा खुदा मुझे क्यों कुर्बान करता है। मगर इफ्ता जलादी की बेटी ने कहा, ए बाप तू अपने खुदा से वादा ना तोड़, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, मुझे 2 महीने की मोहलत दे दे, फिर भले मुझे कुर्बान कर देना। वो बेटी घर आई, उसकी माँ को पता चला, उसकी माँ गले लग के रोई और वो सब बातें हुई। 2 महीने के लिए वो पहाड़ों पर चली गई और अपने कवारपन पर मातम करती रही। और नीचे लिखा है कि जब वो 2 माह के बाद वापस आई तो उसके बाप ने जैसी मन्नत मानी वैसा ही किया, अपनी बेटी को ज़बह कर दिया, कुर्बान कर दिया। ये है बेटी, ये है बाप। बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई और वाकया नहीं है, ये एक ही वाकया है। बाइबल मुकद्दस की एक सदाकत है, और ये जो कुछ लिखा गया बाइबल में वो हमारी जरूरत के लिए लिखा गया। और यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने बच्चों को ज़बह करना है, ये हमें सिखाया गया है, जो खुदा से जुबान करो उससे कभी ना फिरो, जान जाए ईमान कभी ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये वो एक बेटी है जिसने अपने बाप के हुक्म को माना। आज यहाँ बेटियां हैं, आज यहाँ बेटे हैं, मौजूद हैं। क्या इफ्ता की बेटी की तरह हम बेटियां हैं? क्या इफ्ता की बेटी की तरह यहाँ बेटे हैं? क्या इब्राहिम के बेटे इसहाक की तरह आज कोई है? जब इसहाक ने अपने बेटे को लकड़ियों पर रखा था, वो समझ गया था कि वो मेंढा मैं ही हूं। उसने कहा बाप जो तू चाहता है मेरे साथ कर। अगर तवारीख पढ़े तो उसके लिए बहुत कुछ लिखा। मेरे अजीजों, आज फादर डे के मौका पर, बाप के मुबारक दिन पर मैं आज ये बताना चाहता हूँ, हम कौन हैं? हम अपने खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं। इफ्ता जलादी की बेटी की तरह बने, अपनी कुर्बानी देनी पड़े दें, अपने खुदा के परचम को बुलंद करें, यीशु नाम को ऊंचा करें। कभी आप देखें एक इफ्ता जलादी की बेटी नहीं, हजारों बेटियों के साथ ऐसा हुआ। आप तारीख पढ़ के देखें, जब मसीहत अरूज में आई, मसीहत तैयार हो रही थी, बेटियों ने जाने दी। आप अबरानियों का खत 10वां बाब और उसकी 38-35 आयत से पढ़ के देखें कि लोगों के घर लूटे गए, बेटे बेटियों को ज़बह किया गया। लिखा है वहां, तुमने अपना माल का लुट जाना कबूल किया, किस लिए? यीशु की खातिर। और फिर 2 किताबें हैं, शहीदान रोम, और जब रोम जल रहा था वहां बेटों ने अपनी जानें दी और यीशु नाम को बुलंद रखा। आज जो हमारे पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, ये मुकद्दसों के लहू में डूबी हुई है, और ये मुकद्दसों का लहू है।
मेरे अजीजों, आज हम गौर करें, हम औलाद हैं और किसकी हैं? अपने खुदा बाप की। इफ्ता जलादी की बेटी की तरह, इज़हाक की तरह, और आज उन बेटियों बेटों की तरह जिन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाया। अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, चंद लम्हों के लिए बड़ी आजिज़ी से अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, गौर करें इस कलाम पर। हर आंख बंद हो जाए, हर सर झुक जाए। वक्त आन पहुंचा है।